Hello class 11 students, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is mathematics class. As you already know that we have finished module 1. In module 1 we covered the basics of trigonometry, then we covered the trigonometric identities. After finishing the trigonometric identities, we began the lectures on basic math. In basic math we basically talked about how to draw some basic graphs. After that, we talked about some basic functions and the terminologies associated with those functions. After developing a little idea about the function in the graphs, we talked about what do we understand by equations and inequations. Then we talked about the rules of inequality. After that, we covered wavy curve. After finishing wavy curve, we proceeded with solving equations and equations of modulus function. After modulus equations and inequations, we talked about irrational equations and inequations. After irrational equations and inequations, we dealt with some higher degree polynomial equations. After that, we talked about transcendental functions. We understood what is logarithmic function, what is exponential function, how to solve logarithmic equations and inequations, and how to solve exponential equations and inequations. We also talked about what all things we need to keep in mind while solving these equations and inequations. After finishing the basic maths, we again uh, turned back to trigonometry, and in trigonometry we first developed what is the graph of trigonometric functions. After getting a good idea about what are the graphs of trigonometric functions, we proceeded with trigonometry equations and inequations. We talked about general solution, principal value. We developed so many results in trigonometric equations and inequations, and then we also handle all the types of trigonometric equations which we are supposed to solve, and we also talked about what all things we need to keep in mind. Apart from that, we did a lot of problem solving during these 18 lectures, and apart from these 18 lectures we also did many aspects in Can You Solve It series. And apart from Can You Solve It series, we have already started a parallel series, that is additional problem solving, in which we pick the topics from the top from we pick the topics which we have already covered in our regular modules, and we do extra problem solving, keeping in mind the requirement of IIT JEE Mains and Advanced. Now, this module 2 begins with the first course, that is quadratic equation. This course is basically a small course of 10 to 14 days. Basically, this course would be finished in 2 weeks time, and this course, which is like quadratic equation, is basically a one-stop solution. No matter wherever, at whatever point of preparation you are, if you feel anything you are missing in quadratic equation, you can fall back to this course. So I have designed this course. This is a short-term course which is a comprehensive coverage of all things you need to know about quadratic equation. But before we begin quadratic equation, let me tell you about the importance of this chapter. This quadratic equation, as far as IIT JEE examination is concerned, or other engineering examination, every year one or two questions either in JEE Mains or Advanced do appear from quadratic equations. But it is not only important from the perspective of the questions coming from quadratic equation in the examination, but this chapter becomes a very important plays a very important role in your preparation, because in every chapters of mathematics you would be seeing quadratic equations, or you would be taking the help of one aspect or the other aspect of what you are going to learn in quadratic equations. When you are going to study sequence and series, you will see quadratic equations there, a lot of quadratic equations there. When you go into matrices, determinant, vector and 3D, you will be seeing a lot of quadratic equations. When you go into coordinate geometry, you would be seeing uh, altogether 2-degree curves, which is like circle, ellipse, parabola, hyperbola. So you would be looking into the quadratic equations only, basically, because those are quadratic polynomials, because they would be using the 2 degree, as we already know. So we'll be talking about them also.
Apart from that, if you are studying complex numbers, then also you would be seeing a lot of quadratic. In calculus, you would be seeing a lot of graphs and a lot of quadratic concepts. So this chapter becomes a very strong of a very high importance, not only for this chapter, but it becomes a high importance in every department of mathematics. But it doesn't stop only in the field of mathematics. You will see the application of quadratic equation in physics. You must have already started seeing it. If you have finished projectile, or if you're doing projectile, you must be seeing a lot of quadratic equations there, right? So quadratic equation is going to play a big role in your IIT JEE preparation. So this chapter needs to be taken very seriously, and I have designed this small course which is a comprehensive coverage of everything you need to know about quadratic equations. Some of the things which we have already covered in basic maths, I'll be taking it again so that it becomes the repetition of the same. Just like I'll be discussing Wavy curve altogether again. So when you will be seeing Wavy curve again for the second time, so it would get a better grip and you will have a bigger idea. At the same time, students who are new and still coping up with the backlogs, please do feel free to call me anytime, at any point. If you're facing any struggle, any problem, pick up your phone and call me. My number is 9800057934 or 9891380360. You can see these two numbers in your WhatsApp groups. You can find me there also. You have my email ID also. You can connect with your mentors, or you can connect with your academic coordinator, and you can directly call me. And anywhere you're feeling stuck, just I'll help you out. I will allocate you right resources, right mentors, so that you don't get stuck anywhere. So do not feel shy. It's a difficult time because we all have to rely on online learning. So on online learning, three things play a bigger role. How you're organizing. First thing is how you're organizing your day, how you're organizing your studies, how you're organizing your non-academics activity. So first skill which you need to know and which you need to master and which you need to learn is your organizing skill. That do you know how to organize things? Second thing which you need to know is communication. You have to have a strong communication. You need to communicate everything to us, to your friends, to your family, whatever deemed necessary, and always try to communicate. If you are not able to communicate, there is something wrong with your skills, because communication is one of the biggest life skills you need to know. And the third and the most important is coordination. If you feel stuck anywhere, if you need to coordinate with people, you should know how to coordinate, right? So these three skills is something which you are going to learn during this lockdown, and which is going to enhance your uh, life skills, and in future in all the aspects of life, be it professional, be it personal, you would grow as a better and a good human. Okay, so let's begin the first course of module 2, that is quadratic equation, which is going to be a 10 to 14 days course. So let's begin this. So first I'll just give you a course overview, that what we are going to study in this course. So this course I have divided in sections. Basically they are going to be 5 sections. In those 5 sections we have covered everything about quadratic equation which you need to know for your IIT JEE journey. Let's see, in section A, what you're going to learn. You are going to begin with introduction. We are going to talk about what quadratic equation is, how it comes into the picture. Then we are going to talk about completing the square method. Then we are going to talk about discriminant. Then we are going to talk about sum, product and difference of roots of quadratic equation. Then we are going to learn how to represent quadratic equation using its root by factor theorem. Then we have to learn how to represent quadratic equation using sum and product of its root. After finishing this 6 subtopics, we would be doing few problem solving. After doing problem solving, we'll be going to nature of roots, and then we'll be doing problem solving. So section A, most of the thing you already know from your previous class, so you don't need to worry in your first 2 lectures, because those you will just be revising what you already know, and you would be doing a lot of problem solving which will enhance the grip over the topics which we are going to discuss in section A.
In section B of the course, we are going to talk about quadratic inequality. Then we are going to talk about roots under particular conditions. We will be giving few. We will be talking about few standard conditions and how roots behave in those conditions. Then we'll be doing some problem solving related to these two subtopics. After doing the problem solving, we'll be going into the quadratic identity. We'll try to understand what is quadratic identity, and to enhance and to have a better idea, we'll be doing one or two problem solving. After that, we'll be talking about common roots of two quadratic equations. So section B is something where new concepts and new ideas would start emerging, and then you need to have a stronger grip and you have to relax yourself and try to learn these things. After section B, we'll be going to section C. In section C, we'll be talking about the graph of quadratic function. We'll try to interpret the graph of quadratic functions. Then we are going to talk about the range of quadratic function. As you already know, domain and range, we have been talking a lot about it, right? After having a grip over the graph and the range, we will be doing some problem solving related to those two topics. After that, we'll be again doing wavy curve method, which we have already done in our basic maths. So students who are facing problem can really watch this video also, this section also very closely, so that you have a better grip that what are wavy curve, right? After that, we will be talking about location of roots under different conditions. So basically, this is something like the most difficult part of quadratic equation, where you need to learn a lot of analytics. So this is something which is going to challenge you most in the whole course. So location of roots is something which you need to master, right? So you have to have a very strong understanding of this portion, because it is very important from the perspective of your IIT JEE. So you have to know that this is where you have to put your head totally. In section D, the last section of the theoretical aspect, we would be talking about general equation in second degree. As I have already told you that when you would be doing coordinate geometry, you would be doing 2-degree curves. So there would be some general equation ideas. So we would be talking about that, and we would be doing some problem solving there. Then we would be talking about theory of equations, which we have partially done in basic maths. So theory of equation and transformation of equation is something which we have already have a little light idea, because we have done in our basic maths. And the last part which we are going to do is maximum and minimum values of rational expression. So you see, after every topic I have given a problem solving, because problem solving means those topic needs to be enhanced by through those problem solving. That is why you see lots of problem solving, right? After finishing these 4 sections, this finishes your this quadratic equation. So the last section of the course would be that we would be doing more problem solving, more comprehensive type. And then we will have quizzes and assessment. As you know, you will be getting assessments in a regular interval after every lecture. After that, we would also be, we have included one more section, one more services in your package, that is the live doubt sessions. Because when we have finished section A to D, I would be personally taking this live doubt session. No additional teacher would be taking this live doubt session, because once we finish the course, I will always have one interaction with all the students on a live interaction basis, where all the students, wherever you felt problem in section A to D, that we would be covering here. And then of course we are doing additional problem solving series. So once we are done with the backlog thing in additional problem episodes, we will be having another episode in which we would be dealing with quadratic equation. So this is the whole overview picture. This is the course overview. I'm sure you understand what we are going to cover in quadratic equation course. So this course is a short course which is going to make you master in quadratic equation, which will help you have a strong and foundation and a smooth journey in other topics, where you will, in other chapters of mathematics and physics, where you will be seeing quadratic equation. And whenever you will see quadratic equation, you will say, yes, I know it, and I would be able to handle it, right? So always remember that this chapter is going to serve as a very strong model for your future topics in mathematics and physics. Maybe when you are solving some physical chemistry, you may get exposed to quadratic equation there as well. So now let's begin the course. Let's go into the first part of the chapter, and that is the introduction of quadratic equation.
So when we talk about quadratic equation, we need to go a little back. If you remember your class 9th, you must know what is polynomial, right? You have already studied polynomial, and we have been talking a lot about polynomial in our basic math class as well. So if I ask you what is polynomial, what you are going to say? You are going to start with that polynomial is an algebraic expression, right? So polynomial is an algebraic expression, but there are so many algebraic expressions, everything cannot be polynomial. So how you are going to define that polynomial is an algebraic, is a spatial algebraic expression? Then someone will ask you, what is the speciality of this algebraic expression? So now you are going to finish your definition. You are going to say a polynomial is an algebraic expression in which the power of the variable must be a whole number, right? You know, algebraic expression is comprised of algebraic terms, and algebraic term is comprised of constant and variable. If you remember class 7th, 8th, you have studied that. So if you take a variable x and if you take a constant 3, when you multiply 3 with x, you will get 3x. That's a term. When you divide x by 3, you are going to say x by 3, which is another term. When you are going to do 3 by x, that is another term. In all the three terms, what you see, in two of the cases, you see x on the numerator. In the third case, you see x on the denominator. When you see x on the numerator, the power was whole number. When you see x in the denominator, the power becomes -1. So definitely that does not qualify as polynomial. So 3x, x by 3, they are polynomial, but 3 by x would not be qualified as polynomial. And you know how to develop terms. So if I say 3x plus 4y, that becomes two terms, and you can say, okay, it is a polynomial in two variable, right? But we are going to study here polynomial in one variable. So what you can see that in one the degree, the powers, the whole number, the power of any algebraic expression where the power has to be, all the powers of variables should and must always be a whole number. If it is anything other than whole number, you are going to call it that, sir, this polynomial, this algebraic expression is not a polynomial. So this is what you know already, what are polynomial. Then you must have learned in class 9 that what are degree of polynomial. If you remember, degree was the highest power available in the polynomial expression. Let's say if I say x cube plus 4t square plus 500x. So what you see, the highest term is x cube. So what is the degree of this polynomial? The 3. So the highest degree is going to qualify as the highest power of the polynomial expression is going to qualify it as the degree of the polynomial, right? So till here you are clear that what are polynomial and what are its degree, which you have already studied in 9th and 10th. So degree is finished, polynomial is finished. When the degree is 0, you call it constant polynomial. When you need to draw what are constant polynomial, if I say px is equal to 5, and if I ask you to draw on a number line, what you're going to do? You're going to draw a line parallel to x-axis, that is y is equal to 5. If you remember, we have talked in our graph class, right? So px is equal to 7, px is equal to 2, px is equal to 9, px is equal to -3. These are constant polynomial, and if someone asks you how to draw it, you are just going to draw a parallel line to x-axis, and whatever the value is, that needs to be the ordinate, that should be the distance away from the x-axis. So degree, when degree is 0, you call it constant polynomial. When degree is 1, you call it linear polynomial. Linear, as the name suggests, going to be a straight line. So if I say px is equal to 3x plus 5, you're going to say it's a linear polynomial. So px is equal to ax plus b is a linear polynomial where a should not be equal to 0 because that is the coefficient of x. Similarly, when the degree is 2, you call it quadratic polynomial. And when the degree is 3, you call it cubic polynomial. When the degree is 4, you call it biquadratic polynomial, and so on. What are polynomial equations? Let's say if you have cubic polynomial, px is equal to x cube plus 2x. Now this is the cubic polynomial. If I say x cube plus 2x is equal to 0, if I equate that polynomial to 0, that becomes the corresponding polynomial equation. That becomes the corresponding cubic equation. In the same fashion, if a quadratic polynomial is there, px is equal to ax square plus bx plus c,
and if you equate that to 0 means ax square plus bx plus c is equal to 0, that becomes the quadratic equation. So the general form of quadratic equation, what you need to know is ax square plus bx plus c, where a is coefficient of x square. What are b? B is coefficient of x, and what is c? C is constant, and right hand side would be 0, right? So this is, you call it a quadratic equation. You have to understand a should not be equal to 0, because the moment a becomes 0, this quadratic equation becomes a linear equation. B can be anything. It can be minus infinity to plus infinity. C can be anything from minus infinity to plus infinity, and we are going to understand that this is a real quadratic equation. So रियल पॉलिनोमियल, एक टर्म मैं आपको बताना भूल गया, एक होता है रियल पॉलिनोमियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जब भी आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट अगर रियल नंबर्स है तो आप उसे रियल पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो आप उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो अभी हम रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। सो ए, बी और सी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों रियल नंबर्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट बच्चों? आपको ये समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू नो व्हाट। सो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात की, उसके बाद हमने डिग्री की बात की। डिग्री के क्लास बेसिस पे हमने कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे करके बात की, और पॉलिनोमियल से हमने बात किया पॉलिनोमियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल इक्वेशंस, इसमें हमने रियल पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात की जिसके वेरिएबल्स रियल नंबर होते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसे हम ये भी लिखते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें x क्या होता है? x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन पे आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। और a b c क्या होते हैं? a b c रियल नंबर होते हैं। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जो आपने 9th-10th में पढ़ा था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो वैल्यूज ऑफ x जिस पे आपका y 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहूं तो इसके दो जीरोस हो सकते हैं, एक अल्फा एक बीटा, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। हो सकता है कि दो डिस्टिंक्ट जीरोस हो सकता है दो इक्वल जीरोस हो, या हो सकता है एक भी जीरो ना हो, राइट? अगर 3 डिग्री है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। और जैसे ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हो, तो ये जो अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोस का काम कर रहा था, यहाँ पे रूट्स का काम करेगा। अल्फा बीटा क्या बन जाएगा? रूट्स। और अगर आप इसको ग्राफ के फॉर्म में देखोगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा वो एब्सिसा है जहां पे ऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा वहां पे आपका ग्राफ अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 पे एक्स एक्सिस को कट करता है। ये सारी चीजें हम आगे भी सीखेंगे, सिंस आप लोग ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ रहे हो, 11th में भी हमने बात किया था, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। लेट्स मूव फर्दर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप लोग क्लास 10th में ये मेथड जरूर पढ़े थे, देखते हैं क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझने से पहले आपको मैं पहले दो आइडेंटिटी बताऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? मैंने कैपिटल ए बी इसलिए यूज किया कि ताकि आप एक जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी यूज करते हैं उससे कंफ्यूज ना हो, राइट? अब आते हैं क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का क्या मतलब होता है।
अगर मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 और मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो मुझे ये मैं इस टर्म पे ध्यान देता हूं, इस टर्म पे ध्यान देता हूं, इस टर्म पे ध्यान देता हूं। इन तीनों टर्म्स पे ध्यान पे देते हुए मुझे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखता। क्या कोई? क्योंकि मुझे मेरा इंस्पिरेशन इससे आना चाहिए या इससे आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो व्हेन आई लुक इनटू दीज थ्री टर्म्स आई डोंट फाइंड एनीवन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर सकता, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक कलाकारी क्या कर सकता हूं, मैं तीनों को a से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है परफेक्ट स्क्वायर का। क्योंकि अगर a को मैं हटा दूं तो ये एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ है, अब ये हो गया है कि अब ये बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें तो ये मेरा ए स्क्वायर है, ये क्या है 2ab, क्या है ये, अगर आप देखें तो ये क्या है 2ab है, राइट, ये 2ab है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपना 2ab चाहिए होगा, तो यहां पे मेरे को 2 कहीं ना कहीं यहां पे लाना होगा, यहां पे 2 मिसिंग है। तो यहां पे 2 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं 2 रख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स। अब यहां पे मैंने 2 रख दिया है, तो 2 नीचे लाना पड़ेगा तभी बैलेंस आउट करूंगा, तो मैं यहां पे भी 2 रख दूंगा। तो मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एज इट इज अभी छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। मैंने उसको उधर की तरफ ले गया, राइट। अब चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं और उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर ए बन गया है, यहां पे 2 का टर्म्स आ गया है, 2 इंटू ए बी वाला फॉर्म आ चुका है, राइट। दिस इज 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ चुका है, ये आ चुका है, मिसिंग क्या है बी स्क्वायर। क्या मिसिंग है, बी स्क्वायर, बी यहाँ पे रखा हुआ है, बी स्क्वायर मुझे मिसिंग है। तो बी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स। तो ये मेरा b वाला बंदा है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर बाई, मैंने क्या किया, फिर से अगर किसी को तकलीफ हो गई है तो मैंने सिंपली ये लिखा है b बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया है। इक्वेशन का तो सिंपल सा रूल है, जो चीज आप लेफ्ट में कर रहे हो अगर वो चीज आप राइट में करते हो तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर अब बन चुका है। क्या बन गया है, ये बन गया है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया है, ये बन गया है 4a स्क्वायर। 2a का क्या होता है 4a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये b स्क्वायर बना और ये क्या बन गया माइनस 4ac। क्या बन गया माइनस 4ac। तो अब आप देखो क्या बन गया है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। आपसे अगर कोई पूछता है, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपसे कोई पूछता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आप बताइए क्या बोलते हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बोलते हो, है कि नहीं, ऐसे बोलते हो। तो सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अंडर रूट 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर बताइए क्या होता है 2a, क्या होता है 2a। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया प्लस माइनस 2a। अब आप उसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अल्फा अगर एक रूट है तो अल्फा वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बीटा दूसरा रूट है तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस बीटा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दीज आर द टू रूट्स जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल लिया है। ओके तो ये तरीका है। आई एम श्योर अब आप कभी नहीं मिस आउट करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आइए चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको पता हो तो अभी हमने क्या किया, अल्फा क्या आया था हमारा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या था, बीटा क्या था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपको पता है एबीसी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant। अब आप बताइए क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताओ। एक, आप ये बड़ा हो सकता है जीरो से, एक जीरो के बराबर हो सकता है, या जीरो से छोटा हो सकता है। आइए देखते हैं, जब जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस, और ये क्या होगा, माइनस बी माइनस, राइट। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा बीटा आर रियल वैल्यूज। तो हम कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आप कह सकते हो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल टू 0 कह दो तो माइनस बी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो आप क्या कहोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू रियल आर रियल नंबर्स। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, राइट। यहां पे आपने क्या कहा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, राइट। अब यहां पे तीसरी कहानी पेचीदा है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है, जैसे रूट माइनस 49, रूट माइनस 1, तो ये क्या होता है, ये इमेजिनरी नंबर्स में आ जाता है। ये जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये रियल रूट्स नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो आप लिखोगे व्हेन d इज लेस देन 0, तो आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम गौर से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, थोड़े से चैप्टर के आगे पार्ट में, कोर्स के आगे वाले इसमें। ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब आपको पता चल गया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अभी आपको नहीं पता चला, आप तो ऑलरेडी क्लास 10th में जानते हैं, बस मैंने एक रिफ्रेश करा दिया आपको कि ये सारी चीजें जाननी जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अब आपको ये सारी क्लैरिटी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा क्या देखा था, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट। अब आपसे कहता है कोई अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। देखिए क्या हो जाएगा, आप समझ चुके होंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, माइनस 2b बाई 2a, जो क्या बन गया, माइनस b बाई a। तो आपसे कोई पूछता है अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस b बाई a, राइट। कोई पूछता है व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस b बाई a। इसे हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं इसे हम, सम ऑफ रूट्स। अब आपसे कोई पूछता है
अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। आई एम श्योर आपने क्लास 9th में ये सब पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इरेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है। माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि पी प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू, है ना, दोनों का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हो जाता है। और रूट डी का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 4 स्क्वायर। आपको पता है ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4 स्क्वायर। अब बताइए डी क्या होता है, आपको याद होगा डी होता है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखिए क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा। सो माइनस बी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गया c बाई a। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर ax स्क्वायर, अगर कोई इक्वेशन देता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, आप बोलोगे c बाई a। तो आपको ये पता चल चुका है कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। किस चीज का, व्हाट आर ए बी सी, these are a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. These are terms taken from the quadratic equation. Now what are the difference of roots? अगर डिफरेंस ऑफ रूट से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूं फिर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, आपको ये पता होगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। क्या देख रहे हैं 4ab। तो मैं लिख सकता हूं रीअरेंजमेंट करके कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये रिलेशन आपको दिख रहा है, जिसको आप कह सकते हो डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट, राइट। आप कह सकते हो डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने अंडर रूट इसलिए ले लिया, प्लस माइनस ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधे मॉड ले लिया है। डिफरेंस को हम बेसिकली पॉजिटिव ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो अल्फा बड़ा है कि बीटा, ज्यादातर हम अल्फा को बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अल्फा को बड़ा माना है, तो आप बिना मॉड भी हटाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। सो व्हाट यू विल गेट, सो यू विल गेट समथिंग लाइक माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, जिसको आप कह सकते हैं अंडर रूट डी बाई ए, राइट। सो बेसिकली दिस बिकम्स योर डिफरेंस ऑफ रूट। देख लीजिए क्या किया मैंने, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस 4c बाई ए। देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ क्या आएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अल्फा माइनस बीटा इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया रूट डी बाई ए। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ रूट। तो आपसे अगर कोई पूछता है, तो मैंने तीनों रूट रिजल्ट्स में यहां लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है रूट डी बाई ए।
सो डिफरेंस ऑफ रूट इज बेसिकली गोइंग टू बी अंडर रूट डी बाई ए। इसको रिजल्ट अगर आप भूल भी जाए तो भी आप ये तरीका आपको पता है कि डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग इट्स रूट बाय फैक्टर थ्योरम। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, राइट? क्या है इसके दो जीरोज? अल्फा और बीटा। तो फैक्टर थ्योरम, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, बताइए। क्लास 9 10th में आप फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हो, मैं बता देता हूं फैक्टर थ्योरम। चलो फैक्टर थ्योरम मैं आपको एकदम बेसिक से समझा देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा नंबर बताओ मुझे जो 7 से डिविजिबल है, क्या पूछूं मैं? कोई ऐसा नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 7, एक बच्चा बोलेगा 40, एक बच्चा बोलेगा 21, एक बच्चा बोलेगा 707, एक बच्चा बोलेगा 7777, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? 7K। क्या बोलोगे आप? 7K। वैसे ही मैं बोलूंगा अच्छा बताओ कोई ऐसा नंबर जो 13 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? 13K। उसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है px, ये x माइनस अल्फा से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? x माइनस अल्फा से डिविजिबल है। तो आप क्या लिख सकते हो? px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx लिख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0 है, दैट इज व्हाई इट इज अ फैक्टर। और अगर मैं x की वैल्यू अल्फा डाल दूं तो p अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है? 0। 0 इंटू क्यू अल्फा क्या होता है? 0। तो आपको क्या पता चला? p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर तो p अल्फा 0 है, या मैं कहूं p अल्फा 0 है तो इसका मतलब क्या है? x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं, आपको पता है अल्फा बीटा, ये दोनों इसके जीरोज हैं, मतलब p ऑफ अल्फा क्या है? 0। p ऑफ बीटा क्या है? 0। ये है 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसके p अल्फा 0 है, p बीटा 0 है। अगर p अल्फा 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px, राइट? ये आपने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम में। अगर p बीटा 0 है तो इसका क्या मतलब है? x माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ px, राइट? px क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट? तो अगर मैं कहूं px इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, px क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर आप गौर से देखो, ये क्या है? ये है 2 डिग्री। क्या है ये? 2 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। सो डेफिनेटली अब इसके साथ कोई पॉलिनोमियल नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जैसे आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री से ऊपर कर देगा। सो यू नीड दिस। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग इट्स रूट्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो अगर आपको कोई बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जिसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो a into x minus alpha into x minus beta is equal to 0. This is another way of writing your quadratic equation when roots you know. Right? I am sure आपको ये बात समझ में आ गया है। Representing quadratic equation using sum and product of its root. आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है? 0, राइट? उसके बाद आपको पता है अगर मैं सबको a से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, राइट? गौर से देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, ये क्या है और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने 1 कर दिया। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस साइन यहाँ पे आ गया है, लेकिन स्क्वायर के अंदर जो मैंने बनाया है वो क्या है? माइनस बी बाई ए। दिस इज बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या है ये? सम ऑफ रूट्स। क्या है ये?
अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या? दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए सम और प्रोडक्ट लिखो, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई बोलता है सम अगर s है और प्रोडक्ट p है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अगर इसका रूट अल्फा है और बीटा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? s, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? p, राइट? ये आप कॉमन सेंस से कह सकते हो। तो जब भी आपको पता चल जाए सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता चल जाता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, राइट, प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये आपका तरीका है टू राइट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। आइए, अभी हमने इतनी सारी चीजें की है, तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इनहांस कर लेंगे जो अब तक हमने सीखा है, राइट? देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। गौर से देखिए पहले प्रॉब्लम को। इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, so they have given a standard equation that ax square plus bx plus c is equal to 0. Find a quadratic equation whose roots are p plus 2 and q plus 2. तो अब आपको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स ये दोनों है। एक तरीका आपको कह रहा होगा कि इसको अल्फा कह लो, इसको बीटा कह लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? p प्लस 2 प्लस q प्लस 2, दैट इज p प्लस q प्लस 4। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा हो गया p प्लस 2 इंटू q प्लस 2, दैट इज pq प्लस 2 इंटू p प्लस q प्लस 4। और यहां से आप p प्लस q की वैल्यू यहां से ले लो और p और उसको आप एज ए कोफिशिएंट बना के कर लो। तो आप कह सकते हो कि एक आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस q प्लस 4 प्लस पी क्यू प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू, इसको x ले लो, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? मैंने सीधे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो ये आप देख रहे हो कि बड़ा हौच पौच हो गया, गलत नहीं है, इसको भी आंसर निकाला सकता है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू क्या है? माइनस बी बाई ए प्लस 4 इंटू एक्स, पी क्यू क्या है? पी क्यू है सी बाई ए प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू क्या है? माइनस बी बाई ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको और आराम से किया जा सकता था। कैसे? देखिए, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और आपको पता है x इज इक्वल टू पी और x इज इक्वल टू क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। x इज इक्वल टू पी और x इज इक्वल टू क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपको पता है y, आपको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेट्स से इन y, जिसका रूट क्या है? p प्लस 2 और क्या है? q प्लस 2। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जो p प्लस 2 और q प्लस 2 इसका सम और प्रोडक्ट है। तो आप अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू p प्लस 2 और y इज इक्वल टू q प्लस 2 की मदद से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेट्स से इन y। अब क्या है, आपको पास ज्ञान क्या है? आपके पास ज्ञान है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू पी और x इज इक्वल टू क्यू इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो मुझे साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहां से साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दोनों से एक सेम चीज निकल के आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो मुझे y और x के बीच में एक रिलेशनशिप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y और x के बीच में एक रिलेशनशिप। तो मैं देख रहा हूं x कैन इजिली बी रिटन एज y माइनस 2, x कैन इजिली बी रिटन एज y माइनस 2। तो मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बनाना था, और मुझे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दिया हुआ है, विच इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y क्या लिखूंगा? a इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर। क्योंकि यहां पे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे p प्लस 2 और q प्लस 2, क्योंकि जैसे मैं इसको फिट इन करूंगा, ये
इट विल फॉल बैक टू दिस, राइट। तो ये हमें पता चल गया, एक ये तरीका है। एट द सेम टाइम आपको आंसर y में नहीं लिखना है तो आप इसको वापस इसको लिख सकते हो, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट्स p+2 और q+2 है, तो आप सिंपली लिखोगे a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो आपके पास दो तरीका था, एक आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पी और क्यू के फॉर्म में ले आया और यहां से आपको पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू पता चल गया। एक वो तरीका था लेकिन उसमें काफी कैलकुलेशन था। यहाँ पे अगर आपने गौर से देखा तो y था p+2 और y था q+2 और आपको पता है एक्स पी और एक्स क्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए मुझे y और x के बीच में रिलेशनशिप पता चल गया, जिससे मैं कह सकता हूँ x इज बेसिकली y-2। x अपने इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। अब मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y है, इसको क्या सेटिस्फाई करेगा p+2 और q+2। अगर मैं y की वैल्यू p+2 और q+2 डाल दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये आप ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपको मैंने हायर डिग्री पॉलिनोमियल में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था और अभी भी आप आगे भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लैरिटी से समझ में आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 30। सो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब p को 17 ले गया, लेकिन ओरिजिनली p क्या था, ओरिजिनली p था 13 के बदले आपने p को 17 ले लिया, इसको मैं p1 कह रहा हूं, ओरिजिनल लिख दिया, ठीक है। इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड -15। तो आपके जो रूट्स आए -2 एंड -15, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया -17 और अल्फा इंटू बीटा क्या आया 30। सिंस कोफिशिएंट Q को एज इट इज रखा गया तो Q में कोई दिक्कत नहीं है, Q 30 ही होगा। और P जो आपने बेसिकली जो P1 लिया वो बेसिकली 17 ले लिया, बट एक्चुअली में P ओरिजिनल क्या था, P ओरिजिनल था 13। तो अब आपको पता चल चुका है जो आपने इक्वेशन सॉल्व किया था वो ये था x² प्लस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपने गलती से टाइप कर लिया था, तो रियल इक्वेशन क्या था, क्योंकि ओरिजिनल 13 था तो इसको रियल इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हो। रियल इक्वेशन एक्चुअली में होगा x² प्लस 13x प्लस 30। अब बताइए रूट्स क्या हो जाएगा, आपको पता है, इसको आप तुरंत तोड़ दोगे, x² 10x प्लस 3x प्लस 30, मिडिल स्प्लिटिंग द टर्म से भी कर सकते हो, x प्लस 10 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10, क्या हुआ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा -3 और एक रूट हो जाएगा -10। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, आई एम श्योर ये आपको बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी आर द रूट्स ऑफ x² -3x प्लस 5, then the equation whose roots are a² -3a plus 7 and b²। तो आपको एक मान लीजिए जो नया इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है a² -3a प्लस 7 और बीटा क्या दे रखा है b² -3b प्लस 7। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से इसका सम वम निकालने के चक्कर में करेंगे, लेकिन अगर आप गौर से इक्वेशन देखो, x² -3x प्लस 5 और ये साफ कह रहा है कि a भी सेटिस्फाई करता है, तो अगर a इसको सेटिस्फाई करता है तो आप क्या कह सकते हो, a² -3a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर b भी सेटिस्फाई करता है आप क्या लिख सकते हो, b² -3b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन पे ध्यान दो और यहां पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो और यहां पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा क्या हो गया, a² -3a प्लस 5 प्लस 2, बीटा क्या हो गया b² -3b प्लस 5 प्लस 2, क्योंकि 7 को मैं 5 प्लस 2 लिख सकता हूं। अब गौर से देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू, आपको पता है इसकी वैल्यू, बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो अल्फा क्या हो गया 2, बीटा क्या हो गया 2, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
0, जिसको आप खोल के भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स एन इजी प्रॉब्लम, अगर आप गौर से देखेंगे ऐसे फंस जाओगे तो बहुत तरीके से आप फंस सकते हो, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट ए एंड बी, अगेन दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, अगर गौर से देखें क्या है ये। लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, तो मतलब अगर ये इक्वेशन है आपका, तो ए एंड बी रूट्स हैं, मतलब ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी 6 है, और ए इंटू बी क्या है माइनस 2। अगर गौर से देखें तो ए इंटू बी क्या है -2, ये साफ दिख रहा है आपको, राइट। अब कह रहा है ए एन इज ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ये डिफाइन किया है एक सीरीज फॉर एन ग्रेटर देन 0, एन इज अ नेचुरल नंबर डेफिनेटली। देन द वैल्यू ऑफ ए 10 माइनस 2 8 अपॉन 2a माइनस एन, तो सबसे पहले ए 10 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 10 माइनस b टू द पावर 10, और a 8 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8, और उसी लॉजिक से a 9 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जो निकालनी है वो क्या है, वो है a 10, न्यूमरेटर पे पहले काम कर लेते हैं फिर डिनोमिनेटर पे काम करेंगे। न्यूमरेटर को n न्यूमरेटर लिख देते हैं, क्या है a 10, दैट इज a टू द पावर 10 माइनस b टू द पावर 10 माइनस 2a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8। अब देखिए क्या है कि अब कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में a टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9 है, तो मुझे कुछ ना कुछ फैक्टर आउट करना पड़ेगा। अब फैक्टर आउट करने के लिए यहाँ पे पावर 10 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 8 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 9 वाइन मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू -2। क्या दिख रहा है मुझे, ए बी इज इक्वल टू -2। तो मैं एक चालाकी क्या करूंगा, a टू द पावर 10 माइनस b टू द पावर 10 -2 को मैं लिख दूंगा प्लस ए बी इंटू ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8। देखो क्या हुआ, a टू द पावर 10 माइनस b टू द पावर 10, ये बन गया a टू द पावर 9b, और ये बन गया माइनस, लेट मी सी, ये बन गया माइनस a b टू द पावर 9, राइट। प्लस वालों को मैं साथ ले आया, a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 9b माइनस b टू द पावर 10 प्लस ab टू द पावर 9। अगर मैं देखूं यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहोगे कि सर कर क्या रहे हैं, ये सर को कैसे पता चल गया, तो कभी कभी थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे भी चीजें सोची जा सकती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ और एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चन के साथ बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 8 टू द पावर 9 कॉमन ले सकते हैं, ये क्या बन गया a प्लस बी। यहाँ पे b टू द पावर 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या बन गया a प्लस बी। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने 8 टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9 अलग कर लिया है। तो आपके पास न्यूमरेटर क्या आया, न्यूमरेटर आ गया a टू द पावर 9 इंटू ए प्लस बी माइनस बी टू द पावर 9 इंटू ए प्लस बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर है 2a 9, दैट इज 2 टू द पावर a टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द नंबर जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए टू द पावर 9 माइनस बी टू द पावर 9 अपॉन 2 इंटू ए टू द पावर 9 माइनस बी टू द पावर 9। इससे क्या हुआ, इससे आपको पता है ये और ये कैंसिल हो गया, व्हाट यू गॉट, यू गॉट a प्लस बी अपॉन 2। अब बताइए a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 6 है, क्या है a प्लस बी 6, तो 6/2 क्या हो गया 3, 3 इज द आंसर। तो ये सवाल मुश्किल था अगर आप पहले से इसको नहीं जानते हैं, बट एट द सेम टाइम अब आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का स्किल सेट चाहिए होता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आई एम श्योर आप धीरे से इसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन 2 क्यूब, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, इंटू एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 क्यूब। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन 2 क्यू है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 क्यू, देखिए यहाँ पे पावर स्क्वायर 2 दे रखा है ना, एंड क्यू बिलोंग्स टू आर, ओके। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए और बी क्या है, रूट्स है, तो आपको सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन 2 क्यू
इंटू एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2q। मैं साफ से लिख दिया हूँ, व्हाइट से यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे जो ये है ये आपका बी का रोल प्ले कर रहा है ना, ये आपका किसका रोल प्ले कर रहा है, बी का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो आपका था ये आपका बी का रोल प्ले कर रहा है। तो ए बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन 2q, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए, और सी का रोल ये प्ले कर रहा है, राइट। ये आपका सी वाला रोल प्ले कर रहा है, द कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2q, राइट। अब आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। तो पहले सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। बचपन से ही आइडेंटिटी जानते हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस साइन 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी क्या है, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2q। तो देखिए क्या बन गया, 4 कॉमन, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2q माइनस 2 साइन 2q प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2q। अब देख रहे हो, देखिए फिर खोल देते हैं इसको, ये बन जाएगा 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर 2q माइनस 8 साइन 2q प्लस 4 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2q। अब देखिए क्या चमत्कार हुआ, देखिए ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 होगा। ये क्या है 4, तो इसको कर दो तो क्या बनेगा 4 प्लस 4 माइनस 8 साइन 2q। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो अभी हमें पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 8 माइनस 8 साइन 2q। तो बेसिकली हो गया 8 इंटू 1 माइनस साइन 2q। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम दोनों निकाल लेंगे। मिनिमम भी आपको पता है साइन 2q, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये किसके किसके बीच लाई करेगा, ये आप बचपन से जानते हो, अभी जान गए थे, -1 से 1। अगर मैं कहूं माइनस साइन 2q कहां से कहां लाई करेगा, तो डेफिनेटली ये भी 1 और -1 से लाई करेगा, क्योंकि मैं कर दूंगा तो सेम कहानी है, दोनों तरफ मैं माइनस करूंगा तो आप इसको -1 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसको मैंने फिर से वैसे लिख दिया। अब क्या है 1 माइनस साइन 2q, तो मैं 1 माइनस 1, 1 माइनस साइन 2q, 1 प्लस 1 है ना। मैंने क्या किया, तीनों जगह 1 प्लस कर दिया है ना, माइनस साइन 2q में 1 प्लस किया तो ये हो गया, यहाँ पे 1 ये गया, और यहाँ पे -1 के साथ 1, ये क्या बन गया 0 इंटू 1 माइनस साइन 2q 2। तो मतलब 1 माइनस साइन 2q लाइज बिटवीन 0 से 2, बट हमारे को क्या है 8 इंटू 1 माइनस साइन 2q। तो आप लिख देखो क्या है, 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस साइन 2q। 8 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि 8 पॉजिटिव नंबर है, 2 इंटू 8, तो आपको क्या पता चला 8 इंटू 1 माइनस साइन 2q लाइज बिटवीन 16 एंड 0। आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाइज बिटवीन 16 एंड 0। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0, मैक्स वैल्यू क्या हो गई 16, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया। लेट्स कॉल इट द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल कॉल इट अ डे। If p and q are the roots of x square plus bx plus c is equal to 0, find the value of ap plus b to the power -2। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, ap plus b
टू द पावर -2 प्लस ए क्यू प्लस बी टू द पावर -2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, p एंड q। थोड़ी सी कलाकारी कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं ap स्क्वायर प्लस bp इज -c। अगर मैं सबको p से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है ap प्लस b इज इक्वल टू -c बाई p। मैंने क्या किया, देखो ये क्या है, ap प्लस b, तो मैंने इसको -c बाई p लिख दिया। सेम लॉजिक से आप इसको लिख सकते हो ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें आप कह सकते हो ए क्यू प्लस बी इज इक्वल टू -c बाई क्यू। राइट, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये आ गया। तो आपको बेसिकली ए पी प्लस बी टू द पावर -2 प्लस ए क्यू प्लस बी टू द पावर -2 की वैल्यू निकाली थी। मैंने ए पी प्लस बी की वैल्यू लिख दी -c बाई पी टू द पावर -2 प्लस ए क्यू प्लस बी क्या हो गया, -c बाई क्यू टू द पावर -2। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। इस एक्सप्रेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या हो गया है, -c बाई पी टू द पावर -2 प्लस -c बाई क्यू टू द पावर -2। सिंस पावर माइनस में होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन जाएगा -p बाई सी का स्क्वायर प्लस -q बाई सी का स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है माइनस से खत्म हो जाएगा, p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, सिंस हमें p प्लस q की वैल्यू पता है, p एंड q रूट्स है, तो p प्लस q क्या होगा, -b बाई a, और p इंटू क्यू हो क्या होगा, c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट आपको पता है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 इंटू पी क्यू अपॉन सी स्क्वायर। p प्लस क्यू क्या है, -b बाई ए का होल स्क्वायर, 2 इंटू पी क्यू क्या है, c बाई ए अपॉन सी स्क्वायर। क्या बन गया, -b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2ca बाई ए अपॉन सी स्क्वायर, जिसको आप कर सकते हो -b स्क्वायर, सॉरी ये क्या बन गया, -b का होल स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो माइनस वुडंट बी देयर, तो क्या बन गया, b स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड। उसके अलावा और भी तरीके हैं, वो आप कर सकते हो। इसको प्रॉपर इसको सॉल्व करके बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको अकल लगाना होगा। अगर सेम सिमेट्री का दिया हुआ है तो आपको सिमेट्री को समझना होगा और उसको सॉर्ट आउट करना होगा। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है, उसके बाद आई वुड बी गिविंग यू एक्स्ट्रा असाइनमेंट फॉर दिस, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, एंड देन नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग इट विद द सेम फैशन एंड विल फिनिश दिस होल कोर्स, जैसा कि आपको पता है। साइन एक्स एंड साइन वाई बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए साइन स्क्वायर क्यू। देखो यहां पे देखो क्या है, साइन एक्स और साइन वाई रूट्स हैं किसके, ए साइन स्क्वायर क्यू प्लस बी साइन क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम वे अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप समझ रहे हो, यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर क्यू है, साइन क्यू है, वेरिएबल क्या है, क्यू, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब क्या कह रहा है, सच दैट साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन वाई इक्वल्स 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलिए पहले देखते हैं, सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई। क्या होगा सम ऑफ रूट, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या हो गया, -b बाई ए। दूसरी चीज क्या पता चली, साइन प्रोडक्ट ऑफ रूट, साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या हुआ, c बाई ए। तीसरी चीज ऑलरेडी दे रखी है क्या, साइन एक्स प्लस 2 साइन वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस पे थोड़ा सा पड़ताल करूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई। गौर से देखिए, और मैं इन दोनों पे अगर ध्यान दूं
इन दोनों पे, तो देखो क्या निकल के आएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स 1 माइनस साइन वाई एंड साइन एक्स, तो आप ये कह सकते हो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आप लिख सकते हो साइन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए। तो मुझे यहां से साइन वाई निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी बाई ए। तो साइन वाई मुझे मिल गया। साइन वाई जैसे मुझे मिला, साइन एक्स मुझे ऑलरेडी पता है क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या है, माइनस बी बाई ए। और साइन वाई मुझे क्या पता चला, ए प्लस बी बाई ए। तो मैं साइन एक्स निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी बाई ए, राइट। राइट, सो क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ ए प्लस टू बी बाई ए, दिस इज साइन एक्स। आपको साइन एक्स भी मिल गया, साइन वाई भी मिल गया। आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से मैं इक्वेशन अब साइन एक्स साइन वाई को रिमूव कर चुका हूं, मुझे फाइनली आंसर इसमें चाहिए। तो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है माइनस ए प्लस टू बी बाई ए, साइन वाई क्या है, ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां से देखो क्या हुआ, ए और ए कैंसिल, अब देखो क्या हो गया, माइनस ए प्लस टू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी, ए उधर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो या सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है, देखो इसको गौर से देखो, ये खोल दो, इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस ए सी इक्वल्स जीरो। यही निकालना था, देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आप अपने देखा कि टॉपिक तो बहुत आसान था, हमने 7 क्वेश्चंस भी किए, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जहां पे आप फंस सकते थे, राइट। तो डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक आसान हो तो डोंट जस्ट टेक इट बाय द फेस वैल्यू, क्वेश्चंस उसके मुश्किल बन सकते हैं। अक्सर आप जेई का एक फंडा याद रखो, अगर थ्योरी मुश्किल है, अगर थ्योरी मुश्किल है तो सवाल आसान होंगे, और थ्योरी अगर आसान है तो सवाल मुश्किल होंगे। तो थ्योरी अगर मुश्किल है तो घबराओ नहीं, बस थ्योरी को मास्टर करने की कोशिश करो। वंस यू हैव मास्टर्ड योर थ्योरी यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन डिफिकल्ट एरियाज। इन इजी एरियाज द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये रूल आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। सो अगर मैं देखो कोर्स ओवरव्यू में हमने आज क्या क्या कर लिया, लेट्स सी। आज हमने सेक्शन ए का कितना पोर्शन कर लिया, तो हमने आज इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया। छोटा सा पोर्शन रह गया है, वी विल बिगिन विद नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद सेक्शन बी में हम बढ़ेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। एट द सेम टाइम आपको असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आप बहुत अच्छे से जरूर करना। और फिर मैं आपके लिए कुछ लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन वाले चीजें भी करूंगा, जहां पे आप मुझसे पोर्टल पे आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पोर्टल वाली जितनी भी लाइव इंटरेक्शंस मैं रखूं उसमें जरूर आना। उसमें मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं लूंगा, सिर्फ पुराने टॉपिक के सवाल ही उसमें हम लोग जो भी जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है उसको टैकल करेंगे। ओके बच्चों, एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। एपिसोड 3 में आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस और मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो उसको भी अच्छे से करना है। और कोई दिक्कत आ रही है, चाहे बच्चा नया है या पुराना है, किसी भी चीज की परेशानी हो रही है, feel free to call me, feel free to mail me. I'll immediately connect with you and I'll help you. I am your best friend here. I'll certainly help you in every possible manner. Okay, bache, all the best. See you very, very soon. Bye bye.